ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। भारत चीन बॉर्डर पर पेट्रोलिंग को लेकर समझौता हुआ है। 2020 से पहले की स्थिति बहाल करने पर सहमति बन गई है। आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी का बयान सामने आया। विश्वास बहाली क्रमिक प्रक्रिया उपेंद्र द्विवेदी की तरफ से कहा गया। चीन के साथ विश्वास बहाली में अभी वक्त लगेगा। तो देखिए, बड़ी खबर आपके साथ साझा करें। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने सीमा गश्त समझौते के बाद भारत और चीन के बीच विश्वास को फिर से बनाने की बहाल करने की आवश्यकता पर जोर दिया। जनरल द्विवेदी ने भारत चीन सीमा गश्त समझौते की घोषणा के बाद अपना पहला बयान दिया। जनरल द्विवेदी ने जोर देकर कहा कि एलएसी पर विश्वास बहाल करना एक क्रमिक प्रक्रिया होगी जो अप्रैल 2020 की यथास्थिति पर वापस लौटेगी। आगे बताया कि विश्वास को फिर से बनाने के लिए काम कर रहे हैं और उस विश्वास को बहाल करने में समय लगेगा। उन्होंने दोनों देशों के बीच तनाव कम करने के लिए विघटन, डी-एस्केलेशन और बफर जोन प्रबंधन के कदमों को महत्वपूर्ण बताया। तो उपेंद्र द्विवेदी का बयान सामने आया। So, as far as some statements have already been given out, so what does it mean? As far as we are concerned, we were looking at that we want to go back to the status quo of April 2020. Point number one. Thereafter, we will be looking at disengagement, de-escalation, normal management of line of actual control. And this normal management of line actual control will not just stop there. There are phases in that also. So this what I am saying. It has been our stance from April 20 itself when Y.K. Joshi was the army commander, and even today that remains the same. So as of now, what has happened? We are trying to restore the trust. How the trust will get restored? It will get restored once we are able to see each other, and we are able to convince each other. Look, the buffer zones which are there, which have been created, we are not creeping, and both have to reassure each other. Petroleum gives you that kind of advantage. So that's what is something which is commencing, and as we restore the trust, the other stages will also. देखिए, एलएसी पर चीन ने की है गतिरोध खत्म करने की पुष्टि। चीन के विदेश मंत्रालय ने जारी किया बयान। 2020 से जारी विवाद खत्म हो गया है, ये कहा गया है। एलएसी पर चीन ने विवाद खत्म होने की पुष्टि की है। चीन के विदेश मंत्रालय की तरफ से स्टेटमेंट जारी हुआ है। Now the last point is about China. So as far as some statements have already been given out, so what does it mean? As far as we are concerned, we were looking at that we want to go back to the status quo of April 2020. Point number one. Thereafter, we will be looking at disengagement, de-escalation, normal management of line of actual control. And this normal management of line actual control will not just stop there. There are phases in that also. So this what I am saying. It has been our stance from April 20 itself when Y.K. Joshi was the army commander, and even today that remains the same. So as of now, what has happened? We are trying to restore the trust. How the trust will get restored? It will get restored once we are able to see each other, and we are able to convince each other. Look, the buffer zones which are there, which have been created, we are not creeping, and both have to reassure each other. Petroleum gives you that kind of advantage. So that's what is something which is commencing, and as we restore the trust, the other stages will. चलिए, अब आपको ये बता देते हैं कि भारत चीन के बीच किन किन बातों पर विवाद है। देखिए, भारत चीन के बीच 5 फिंगर पॉइंट पर लड़ाई है। उत्तरी लद्दाख में दौलत बेग ओल्डी, अरुणाचल प्रदेश में किबिथू, लद्दाख में चुसुल, अरुणाचल प्रदेश में तवांग के पास बुमला, सिक्किम में नाथुला पास। तो ये तमाम वो जगह है जिन्हें लेकर दोनों देशों के बीच विवाद है। बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जिन पर चीन अपनी दावेदारी जो है वो पेश करता है। चीन का कहना है कि ये हिस्सा जो है चीन का है, लेकिन भारत का वो हिस्सा। और ऐसे में कई दफा हमने ये भी देखा है कि चीन ने इस तरह के नक्शे भी चीन द्वारा जो पास किए गए हैं जिनमें भारत के हिस्सों को कहीं ना कहीं अपना बताया गया है। इस बीच देखिए, 1962 के बाद भारत चीन के बीच विवाद काफी बढ़ गया है। चीन से एलएसी पर कई बार संघर्ष भी हुआ है। और 1967 की बात करें तो सिक्किम तिब्बत बॉर्डर के नाथुला और चोला के पास भारत ने चीन को करारा जवाब भी दिया है। कार्रवाई में भारत के 80 से ज्यादा सैनिक शहीद हुए। चीन के 400 सैनिक जो है वो मारे गए।
1975 का जिक्र करें तो चीन ने अरुणाचल प्रदेश के तुलुंगला में असम राइफल्स की पेट्रोलिंग टीम पर अटैक किया। चीन के अटैक में 4 भारतीय जवान शहीद हुए थे। 1987 में भारत चीन के बीच तवांग के उत्तर में सम दोरांग चू इलाके में टकराव हुआ। बातचीत के बाद बिना किसी खून खराबे के मामला जो है वो शांत हुआ। 2017 में डोकला में 75 दिनों तक सेनाएं आमने सामने रही। चीन ने शुरू किया था सड़क निर्माण, भारतीय सेना ने चीन को रोका। 2020 का अगर हम जिक्र करें तो लद्दाख के गलवान घाटी में दोनों सेना के बीच झड़प हुई। 20 भारतीय सैनिक शहीद हुए। चीन के भी 38 सैनिक जो है वो मारे गए। 2022 की बात करते हैं। अरुणाचल के तवांग में चीनी सैनिकों ने भारतीय पोस्ट को हटाने की कोशिश की। भारत के 6 जवान जख्मी हुए। चीन को ज्यादा नुकसान हुआ। तो ये तमाम वो पुराने इंसिडेंट थे जिनका जिक्र करके हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे थे कि भारत चीन के बीच आखिर विवाद क्या है। और देखिए, चीन ने कई दफा इस तरह की हरकतें की हैं कि भारत के हिस्सों को अपने नक्शे में अपना बताने की कोशिश की है, जिसकी भारत ने कड़ी निंदा भी की है और ये बताया कि किसी भी कीमत पर अपनी संप्रभुता के साथ हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। चीन को हमारी सीमाओं का सम्मान करना होगा। इस बीच देखिए, लगातार जिस तरह से तमाम देशों के बीच युद्ध की स्थिति देखी जा रही है, चीन भी ये बात बखूबी समझने लगा है कि पड़ोसी मुल्कों के साथ अगर समन्वय नहीं रहेगा और अगर संघर्ष की स्थिति होगी तो नुकसान इसमें दोनों का होगा। हो सकता है एक का ज्यादा हो और एक का कम हो, लेकिन नुकसान होगा जिसका आर्थिक रूप से भी जाहिर तौर पर असर पड़ेगा।